respected Chief Postmaster General, Odisha Circle, respected Personnel Officer Administration, East Coast Railways, respected Deputy Commandant, CRPF, Shri Nagesh Kumar, Odisha, Shri Lingaraj Nayak, Authority of India, Shri Binay Satpathy, Shri Sanjay Kumar Dash, respected zonal directors and employees of various ministries and departments, print and electronics media, and distinguished audience. नरेंद्र मोदी जी के द्वारा परिकल्पित इस रोजगार मेले में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। आइए आज के विशिष्ट अतिथियों को स्वागत करते हुए इस आयोजन का शुरुआत करें। मैं ओडिशा डाक परिमंडल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल श्री आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्पर. It is indeed a proud moment for Department of Post, as the Department of Post has got, and in the today evening, sir was telling that he will be again going back on the tour. So Powering communities by unlocking new possibilities for financial. This fast and secure payment system, transactions are processed every month. Barriers like slow processes and overhead expenses in transferring money back home. Per month on UPI. For the Indian diaspora, this means instant transfers, the opportunity to explore new revenue streams, affordable and impactful financial services. Datta, Regional Director ESI Corporation, Shri Nihar Ranjan Pradhan, GM Region Food Corporation of India, Shri Sanjay Kumar Dash, Deputy Director General Geological Survey of India, Shri Binay Satpathy, AGM HOD HR Airports Authority of India, Shri Kuldeep Sharma, Zonal Director Narcotics Control Bureau. Rozgar Mela is an initiative taken by Government of India to promote inclusive and equitable development through employment generation. It also aims to develop a skilled workforce by preparing new recruits for their roles through training and skill development programs. It is a platform which facilitates quick connection between job seekers and employers. In today's Rozgar Mela, appointment letters will be distributed through a video message by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to more than 51,000 candidates across 40 locations who have been selected for government jobs throughout the country. It is my privilege to announce that 302 candidates of various central government departments will receive their appointment letters today from Honorable Minister and dignitaries present on the dais. I can still remember when I was in Postal Directorate, I was holding 3 charges: DDG Personnel, DDG Establishment, and Vigilance Petition and Departmental Examinations. When this concept of Rozgar Mela came for the first time, sir, everybody was astonished how PM will distribute the appointment letters to so many candidates throughout the country. So there were series of meetings, and ultimately Mr. Gauba
कैबिनेट सेक्रेटरी ही चेयर्ड द मीटिंग। सो आहिस्ता आहिस्ता जो था रास्ता बनता गया। जैसे हम बोलते हैं वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे, कि जब रास्ता बनाना है और विल है तो रास्ता अपने आप बन जाता है। और आज की डेट में हम ये देख रहे हैं कि ये रोज़गार मेला जो है एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में सारे थ्रू आउट इंडिया होता है, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होता है, जिससे सेंट्रली, जैसे अभी आप स्टेज पे देख रहे हो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स जो हैं वो इकट्ठे एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, वैसे हम लोग कभी इकट्ठे नहीं होते। इवन जो कैंडिडेट्स हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको भी कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो दूसरे डिपार्टमेंट से सिलेक्टेड कैंडिडेट से या दूसरे लोगों से मिलें और डिस्कस करें, और ना ही कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कोई फॉर्मली उनको अपॉइंटमेंट लेटर दें, उनका भी फोटोग्राफ हो। दीज आर लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस एंड लाइफ टाइम मेमोरीज। ये जो आपको आज अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलेंगे, आपका जो ये फोटोग्राफ होगा, ग्रुप फोटोग्राफ्स होंगे, ये आपकी लाइफ टाइम मेमोरी होगी, एंड दैट विल बी in presence of so many people across the society and members of the media also. And at the same time, throughout the country, this exercise is being carried out. So, ज़्यादा time नहीं लेते हुए, I once again congratulate the successful candidates and wish them all the best in their careers. And welcome you all. Welcome you all. UN Sustainable Development Goal to bring remittance costs under 3% by 2030. Together, we are not just transferring money, we are empowering lives and shaping a future where financial inclusion knows no borders. Because sending money isn't just a transaction in action, it's a transformation. लिए रोजगार के नए नए विकल्प इसी तरह उपलब्ध करवाने में रोजगार मेले के अवसर पर अब प्रस्तुत हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए प्रेरक आशीर्वचन। साथियों, इस बार रोशनी का त्योहार दिवाली आप सबके जीवन में नई रोशनी लेकर आया है। उत्सवों के बीच पक्की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिलना, यानी उत्सवों का उल्लास और सफलता की डबल खुशी, ये खुशी आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को मिली है। मैं महसूस कर सकता हूं आप सभी के परिवार में कितना आनंद होगा। मैं आप सभी को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीवन की इस नई शुरुआत के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपका ये उत्साह, परिश्रम करने की आपकी क्षमता, जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र के लिए बुलाया जाता है उनके नामों की घोषणा एक एक करके की जाएगी। मैं उनसे फाइनेंशियल सर्विसेज, श्री अमलान महापात्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिस अंकिता सामंतराय, मिस मधुस्मिता प्रधान, श्री निरंजन बेहरा, श्री प्रभुदत्त होता,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मिस प्राची प्रज्ञा परिडा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। श्री प्रद्युम्न कुमार साहू, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Across its vast expanse. श्री प्रसन्न कुमार बेहरा फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मिस प्रत्याशा पंडा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। श्री राजेश कुमार नायक, श्री रश्मि रंजन परमाणिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। श्री रतिकांत साहू, मिस शुभलक्ष्मी पटनायक, श्री स्वयंजी प्रधान, श्री उदयभानु सेनापति, मिस शुभश्री साहू, मिस प्रियंका बेहरा, मिस श्वेता नायक, मिस तपस्विनी बेहरा। नेक्स्ट कैंडिडेट फ्रॉम ओरिएंटल इंश्योरेंस, श्री सत्यव्रत साहू। दर्शक मान अनुरोध, नुआ चाकरी पाउछंती आपण माने तांकू शुभेच्छा और अभिनंदन आपण करताली माध्यम रे जणैबे। नेक्स्ट ईएसआईसी, श्री शुभंकर सामंत फ्रॉम ईएसआईसी ओडिशा। मिस प्रीता कुंडू, मिस सीमा लायक, श्री मिलन मुर्मू, मोहम्मद अब्रार अली, मोहम्मद अब्रार अली फ्रॉम ईएसआईसी। श्री संजय दास, ईएसआईसी। श्री आनंद कुमार साहू, श्री शोभन सरकार, श्री ऋत्विक हाजरा, श्री विश्वजीत सिंह, श्री शशिकांत स्वाई, श्री चंदन कुमार राउत, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल इंश्योरेंस और ईएसआईसी के नवनियुक्त उम्मीदवारों से अनुरोध करता हूं जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं वे माननीय मुख्य अतिथि के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने के लिए आगे आए। नूतन शक्ति नूतन ऊर्जा भरीदेव, तेणुक ए श्री सौरभ मिश्र, श्री प्रमीत रंजन, श्री ज्ञान रंजन मुदुली,
Next appointees from Aizawl, Berhampur, Shri Ramachandra Sahu. Next appointees from CRPF, Krishna Chandra Patanayak, Prashnajit Gowda, Govind Nayak, Sandeep Kumar Behra, now appointees from GST, Central Excise and Customs, Bhubaneswar Zone, Pratiksha Dubey, Shri Shahib Mazumdar, Miss Mausami Sarkar, Miss Ipsita Mohapatra, Miss Aditi Jaina, Miss Aditi Jaina from Geological Survey of India, Shri Basta Kumar Sahu, Shri Sukumar Biswal, Miss Subhasmita Sahu, Shri Raghunath Das, Miss Subhashri Rath, Shri Soumya Ranjan Behra, Shri Krishnamayi Pati, now candidates from Omkar Prushti. Now candidates from FCI. Shri Omkar Prushti, Shri Anaranjan Jena. Next candidates from Income Tax Department. Shri Sashank Shekhar, Shri Dibakar Mohanty, now candidates from Narcotics Control Bureau, Shri Shakti Prasad Binayak, Sri Lanka Venkatesh, Shri Jagat Nahak, I request the newly appointed candidates who have already received their appointment letters
to please come forward for a group photo with Honorable Chief Guest. Authority of India, Sri Niyar Ranjan Naik. Miss Swati Manjari Naik, Airport Authority of India. Sri Homeswar Rana, Airport Authority of India. Sri Arya Ansuman Balwantaray, Airport Authority of India. नेक्स्ट मु अनुरोध करी ओडिशा डाक परिमंडल रे नवनियुक्ति आशायी प्रार्थी को मंच उपर को आसी नियुक्ति पत्र ग्रहण करने आई रिक्वेस्ट आवर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सर टू जॉइन आवर चीफ गेस्ट श्री विद्युत प्रकाश गिरी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिस बिप्सा रानी प्रधान, श्री गणिया चंद्र बोस प्रधान, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, श्री सुनील प्रधान, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिस मोनालिसा बेहरा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, श्री अरमान पाणिग्राही, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिस प्रियंका प्रियदर्शिनी पलई, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिस लिप्सा रानी स्वाई, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, श्री सूर्यस्नाथ पलई, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिस प्रज्ञा स्वरूपा नायक, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, श्री सुरेंद्र रायपात्र, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, श्री सिद्धा निर्लेश साहू, सॉरी श्री आशुतोष सुंदर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, श्री सिद्धा निर्लेश साहू, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिस सुहानी शुभश्री जैना, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिस असीमा तराई, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिस वर्षा प्रियदर्शिनी साहू, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, श्री सौभाग्यदित्य महांती, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, श्री अनुराग प्रधान, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, श्री देवनीता दास, मिस देवनीता दास, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, श्री ओम प्रकाश दास, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिस श्रद्धा सुमन जेना, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, श्री सिल्लू बेहरा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, श्री दिव्यलोचन सेठी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, श्री नीतीश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट,
श्री जम्बीरा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। श्री चंदन समल, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं ओडिशा डाक परिमंडलर नवनियुक्ति प्रार्थी जो मान नियुक्ति पत्र ग्रहण कर सारे से अनुरोध करी मुख्य अतिथि वरेण्य केन्द्रमंत्री सहित ग्रुप फोटो पर मंच को आसवे। ईस्ट कोस्ट रेलवे, सर श्री भगवान परिडा, ईस्ट कोस्ट रेलवे। मिस शाश्वती सिंह, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री देवाशीष साहू, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री देवी प्रसाद मोहंती, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री सार्थक परिडा, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री ज्ञानरंजन साहू, ईस्ट कोस्ट रेलवे। आज रोजगार मेला रे सबुठारु अधिक कैंडिडेट होचंदी ईस्ट कोस्ट रेलवे रो, तो आपण मान करताली ईस्ट कोस्ट रेलवे जाए सुविधा दरकार। श्री संग्राम केसरी परिडा, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री महावीर आशीष मोहांती, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री अंजन कुमार मिश्र, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री अरूप कुमार अपात, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री बादल कुमार स्वाई, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री आलोक कुमार राउत, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री सुदर्शन राउत, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री महेश माझी, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री कार्तिक चंद्र नायक, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री स्वाधीन कुमार मंत्री, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री प्रशांत स्वाई, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री अभिजीत बारिक, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री आदर्श महाराणा, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री मानस रंजन बिस्वाल, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री चिन्मय प्रधान, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री अजय कृष्ण कुमार, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री महेश ओराम, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री आशुतोष प्रधान, ईस्ट कोस्ट रेलवे।
श्री थॉमस गिरी, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री पीके रोशन घड़ई, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री नडिमिंटी नवीन, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री प्रसन्न कुमार बेहरा, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री स्मृति रंजन साहू, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री मिलन कुमार साहू, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री चंदन बेहरा, ईस्ट कोस्ट रेलवे। रेल विभाग के नवनियुक्त उम्मीदवारों से अनुरोध करता हूं, जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, वे माननीय मुख्य अतिथि के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने के लिए आगे आए। दर्शक मानू आपण मानू समस्त को अनुरोध करताली से मानू नूतन आशार आलोक भरी। मिस प्रियंका साहू, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री वासुदेव सेठी, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री प्रदीप बेहरा, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री करीम सतीश, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री सौरभ सिंह, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री सत्य प्रकाश, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री चिन्मय दड़ई, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री मंटू मल्लिक, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री चंद्रशेखर पात्र, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री पांगी मधुशंकर, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री अजय कुमार साहू, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री जितेंद्र कुमार स्वाई, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री सूरज कुमार सोरेन, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री आशीर्वाद नायक, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री मानस कुमार मोहंती, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री कल्ला संतोष कुमार, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री श्रीकांत कुमार पात्रो, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री सुनील कुमार दास। नेक्स्ट मोहम्मद परवेज, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री रत्नाकर मिश्रा, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री अमन कुमार, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री रजत कुमार मिश्रा,
श्री सूरज कुमार पात्र, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री संजय कुमार बारिक, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री मानस रंजन गणनायक, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री राजेश कुमार साहू, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री बलराम मोहंती, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री स्मृति रंजन बिस्वाल, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री जितेंद्र कुंभार, ईस्ट कोस्ट रेलवे। मिस्टर शेख रहान, ईस्ट कोस्ट रेलवे। मिस मानसी मंजरी मेसवा, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री शिल्प रंजन पानिका, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री कंडरेगुला किरण कुमार, ईस्ट कोस्ट रेलवे। Now time for group photograph. Those who have received their appointment letters. श्री नंदकिशोर साहू, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री संदीप कुमार, ईस्ट कोस्ट रेलवे। मिस रीना कुमारी, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री राजेश पंडा, ईस्ट कोस्ट रेलवे। मिस अभिलिप्सा दास, ईस्ट कोस्ट रेलवे। मिस सीमा रानी नायक, ईस्ट कोस्ट रेलवे। ए गोपीबल्लभ पात्र, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री राकेश गैगोरिया, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री गुजड़ी हेमसुंदर राव, ईस्ट कोस्ट रेलवे। मिस मोनालिसा बारा, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री दयानिधि राउत, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री सयंतन सन्याल, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री मनीष छत्री,
श्री आशुतोष दास ईस्ट कोस्ट रेलवे करताली शुभु ना पिला माने उत्साहित होना। श्री देवेश मिश्र ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री चप्पा मधु ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री अभिजीत बेउरा ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री दिलीप कुमार मीना ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री सौरभ कुमार ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री श्रुति सागर पटनायक, भवानी शंकर मिंज ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री अनिम शिवप्रसाद ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री जगन्नाथ रवाड़ा ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री सौरभ कुमार ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री सम्राट मंडल ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री विश्वजीत स्वाई ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री प्रसून सांतरा ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री अतिन बैरागी ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री ऋतिक सिंह ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री दीपक कुमार ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री दीपक मंडल ईस्ट कोस्ट रेलवे, रेल विभाग के नवनियुक्त उम्मीदवारों से अनुरोध करता हूं, जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं वे माननीय मुख्य अतिथि के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने के लिए आगे आए एवं दर्शक मान को अनुरोध दयाकरी करताली रे से उत्साहित करेंगे। श्री सुशांत मत्ताबार ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री बिट्टू सागर ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री चंपाई मांडी ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री जरपल्ला साईराम नायक ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री नरेश पूर्ति ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री शिवराम मीना ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री कुलदीप मीना
श्री राजेश यादव, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री विजय कुमार मंडल, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री बी नरसिम्हा राव गवारा, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री तयुति नायडू कुर्ती, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री अभिषेक वैष्णव चरण दास, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री अमिय दास, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री पंडराकी भरत कुमार, श्री सुप्रभ सुमन स्वाई, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री संबित कुमार मिश्र, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री आशीष कुमार पात्र, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री साई जयंत पटनायक, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री टी तिरुमला राव, ईस्ट कोस्ट रेलवे। मिस माझी ओपेल बडेन, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री किशन तांडी, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री अविनाश सिंह, ईस्ट कोस्ट रेलवे। मिस दमयंती भरसागर, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री दुर्योधन हियाल, ईस्ट कोस्ट रेलवे। मिस ज्योत्सना बगर्ती, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री जसवंत पानिका, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री कल्पतरु दास, श्री शुभम महापात्र, ईस्ट कोस्ट रेलवे। फोटो सर। नाउ टाइम फॉर ग्रुप फोटोग्राफ। आपण मानक पाई अनुरोध। न कहले आपण माने बुझी जाउछन्ती, मझिरे मझिरे पूरा साइलेंस हो जाउछि। हाँ सर। श्री शुभम महापात्र, श्री जन्मेंजय जेना, श्री संग्राम केसरी राउत, श्री बंगू भरत कुमार रेड्डी,
श्री विवेक नायक, श्री अमीय किरण दास, ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री सूरज कुमार दास, ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री राजेश गुरगवल्ली, ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री अविनाश पृष्टि, ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री कंबुधर नायक, ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री भरत भूषण, ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री स्वयंभू पात्र, ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री अमरेश कुंड, ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री जीत सम्राट साहू, ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री अंगद सिंह, ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री सौम्य रंजन प्रधान, ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री तारिणी रत्न साहू, ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री संकेत कुमार पालो, ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री बिरगंटा चैतन्य, ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री अनिल कुमार भट्ट, ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री आलूज श्रीकांत, ईस्ट कोस्ट रेलवे, मिस प्रियंका बलियार सिंह, ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री राजीव नयन, ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री चंदन सेन, ईस्ट कोस्ट रेलवे। Now time for group photograph with our chief guest. All the candidates who have received their appointment letters are requested to come forward for group photograph. श्री नीलेश कुमार, ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री अंशुप धड़, ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री सौरभ घोष, ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री विश्वजीत माझी, ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री रवि नारायण साहू, ईस्ट कोस्ट रेलवे, श्री निखिलेश नायक, ईस्ट कोस्ट रेलवे,
श्री संतोष कुमार साहू, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री रश्मि रंजन दास, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री आदित्य दिव्यज्योति बराड़, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री विनय कुमार प्रधान, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री आलोक बेहरा, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री अभिलाष बस्तिया, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री प्रीसु रंजन, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री शिवम रंजन, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री ज्ञानजीत बेहरा, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री अमलान सेठी, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री आशीष प्रधान, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री विश्वजीत लेंका, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री सौम्यदीप सामंत, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री बंदारू सौजन्य कुमार, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री संबित शरणबीर, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री चंद्रशेखर कुमार, ईस्ट कोस्ट रेलवे। श्री सुशांत कुमार साहू। हाँ ठीक है अपन से 7 रेडी करिए नहीं आसन खूब डाक्सन 7 ना कहां दे हाँ डाक दे बैठे हुए आज के इस रोजगार मेला के ऑर्गेनाइज करने वाले ऑर्गेनाइजेशन CPMG चीफ पोस्ट मास्टर जनरल निर्मल जीत सिंह जी, सरोज महापात्र प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स, प्रकाश चंद्र नायक कमिश्नर GST सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स, प्रोफेसर आशुतोष विश्वास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स, प्रदीप कुमार राय रजिस्टर IISER, संगीता सागरिका पटनायक चीफ पर्सनल ऑफिसर ईस्ट कोस्ट रेलवे, नागेश कुमार डिप्टी कमांडेंट CRPF भुवनेश्वर, रुद्रदीप दत्त जनरल डायरेक्टर ESI, लिंगराज नायक AGM SNBC, निहार रंजन प्रधान GMFCI, संजय कुमार दास डिप्टी डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कुलदीप शर्मा जोनल डायरेक्टर NCB, विनय सतपथी AGM एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ बैठे हुए बाकी देवी और सज्जनों जिनको आज नौकरी मिलने वाला है, जो रोजगार मिलेगा, भाई और बहनों, मेरे को जो जानकारी दिया गया है 302 आदमी को अभी आज यहाँ इस स्थान में, ऐसे तो 51,000 कितना का प्रधानमंत्री जी आज रिलीज करेंगे, लेकिन इसमें 302 व्यक्ति का
आपको नौकरी मिलेगा। उसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओरिएंटल इंश्योरेंस 21, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI 12, एम्स भुवनेश्वर से 7, HSER बरहमपुर से 1, CRPF भुवनेश्वर से में 5, GST सेंट्रल एक्साइज में 3, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 6, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 5, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 2, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में 3, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 4, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में 26, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 207। ऐसे 302 आदमी को अभी कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री जी जब क्लिक करेंगे बटन, उसके बाद आप लोग को वो रोजगार का जो अपॉइंटमेंट लेटर बोला जाएगा, उसको आपको मिल जाएगा। मैं अग्रिम बधाई देता हूं आपको। प्रधानमंत्री क्लिक करने के बाद फिर हम एक एक आपको हम उसको देंगे व्यक्तिगत हिसाब से। मैं तो आप लोग जैसे सर्विस में, ऐसे मैं भी एक कंपनी में सर्विस कर रहा था BHEL में, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद BHEL भोपाल, हैदराबाद, हरिद्वार, ये सब में, त्रिचनापल्ली, ये सब में ट्रेनिंग लेने के बाद नालको CPP हम लोग शुरू किया। तो नौकरी तो मिल गया, लेकिन आके हमने जो ज्वाइन किया पहला दिन बड़ा दुखी लगा मेरे को। वो ताल पत्ता का शेड बनाया हुआ था, उसमें कुछ सिक्योरिटी लोग रहते थे। हम लोग आए जूता वूता पहन के, लेकिन हमको बोला कि चलिए ये सर्वे पिलर को देख के आइए। उस एक मैप दे दिया गया, लेआउट मैप, प्लांट कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, उसका सर्वे पिलर 1 नंबर 2 नंबर ऐसा करके उसको देख के आया। तो जूता तो का हालत जो हुआ, हमारा हालत भी जो हुआ, मैं बोला ये क्या नौकरी हो गया भाई, बेकार का यहाँ फंस गया। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन काम करते करते लगा कि नहीं, इसमें भी काम करना आवश्यक था। फिर उसके बाद हम थोड़ा भोकाल आदमी थे, GM PM बाकी लोग बड़ा ऑर्डर करते थे। आप बड़े ऑफिसर लोग बैठे हैं यहाँ, तब बाकी ऑफिसर लोग बैठे हैं, तो मैं थोड़ा उल्टा सीधा बोल देता था। तो बोल देने के कारण ये बोला कि ये बड़ा बदमाश आदमी है लड़का, इसको गेस्ट हाउस में दे दो। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो गेस्ट हाउस देखो। फिर बोला कुछ दिन के, बोला कि इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को देखो। फिर बोले कि बॉयलर इंस्पेक्टर को देखो। फिर बोले कि MLA को देखो, MP को देखो। और उस समय में मेरे को 15,000 रुपया देते थे, इम्प्रेस्ड मनी। आप लोग यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों को उसके बारे में, उसमें आप क्या खर्चा करेंगे उसका कोई स्पेसिफिक लिखा नहीं होता है। उसमें एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, द मनी वाज स्पेंट फॉर द पर्पस फॉर व्हिच इट वाज ड्रॉन। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। तो मैं इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को गाड़ी देता था, खिलाता पिलाता। MLA महोदय भुवनेश्वर जाएंगे, उनको गाड़ी देता था। MP को गाड़ी देता था, गेस्ट हाउस में खिलाता था। ये सब करते करते मेरे को बोला कि अरे साला मैं क्यों MLA नहीं बनूं। इसलिए भी मैंने बोला कि हमारा MLA को मैंने मिलने जाता था, तो कांग्रेस का MLA, वो वर्कर लोग इतना ज़्यादा बाहर में बैठे होते थे, मोटा मोटा चेन लगा के, ब्रासलेट ये लगे, तो वो घुसने ही नहीं देते थे, MLA को मिलने ही नहीं देते थे। मेरा बहुत सिंपल काम था। मेरा गांव में मैं स्कूटर ले जा नहीं पाता था, साइकिल बारिश का दिन में हम लेके नहीं जाता पाता था मेन रोड से, इलेक्ट्रिक नहीं था। टीवी तो खरीदा था मैंने, कोणार्क का उस समय का रोहिणी डिलक्स मार्क 3 कलर टीवी, लेकिन हम उसको लगा नहीं पाते थे। तो इसके कारण हम ज्ञापन देने के लिए MLA के पास जाना चाहता था, तो उनको मिलने ही नहीं दिया। 2-3 और बोले हमको दे दो, तो हम बोले नहीं आपको क्यों देंगे,
हम पढ़ा लिखा इंसान है, स्कूटर में आया हूँ। अब उस एरिया में स्कूटर, भेसवा स्कूटर भी बहुत कम था उस टाउन में। तो मैंने बोला कि हम देना है, आप क्यों नहीं देते? नहीं हम नहीं देंगे, आप हमको दे दो, हम करेंगे। मैं बोला ये नहीं होगा, फाड़ के फेंक दिया। बोला चलो नेक्स्ट टाइम हम एमएलए लड़ेंगे। बीएचईएल में एक प्रावधान है, आज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लियोन में जा सकते, लीव विदाउट पे में आप परमिशन लेके कॉन्टेस्ट कर सकते। तो मैंने 85 में, 89 का बात है, 88-89 का, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बनाई से जहाँ मैंने एमएलए जीता उस समय में, उसमें हमारा कैंडिडेट को 85 में 1100 कितना वोट मिला था, 1100 सम ऑड। तो उस सीट में से हम लड़के जीतेंगे क्या? बीजेपी का नाम भी नहीं था, बीजू बाबू तो साइन बोर्ड पार्टी बोल दिए थे। तो इसलिए फिर भी मैंने थोड़ा हिंदू विचारधारा का आदमी होने के कारण मैं बीजेपी में ज्वाइन करके 1-2 मीटिंग वूटिंग जाके, उसके कारण भी मेरे को पर्सनल ऑफिसर 2-3 से मैंने मेमो दे दिया था कि आप छुट्टी लेके जाते हैं और लेट करके आते हैं और पॉलिटिकल मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं, न्यूज़ में निकल रहा है आपका नाम, ऐसे करके मेमो दे दिया था। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैंने हारने के लिए कॉन्टेस्ट किया, हारने के लिए, इसको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हारने के लिए कॉन्टेस्ट किया। नॉमिनेशन कर दो, कुछ लोग जान जाएंगे, कुछ पैसा खर्चा करूँगा, 20-25 हज़ार रुपया पोस्टर वोस्टर लगा देंगे, उसके बाद लोग जान जाने के बाद आगे टाइम में मैं थोड़ा पैसा इकट्ठा करके फिर ऑर्गेनाइजेशन करके मैं एमएलए कॉन्टेस्ट करूँगा, ऐसा सोच के मैंने नॉमिनेशन किया। लेकिन लोग खाली जिताने के लिए वोट नहीं देते हैं, लोग हराने के लिए ज़्यादा एग्रेसिव में वोट देते हैं, इसको समझ लीजिए। इसको जो पॉलिटिक्स में ध्यान रखते हैं या पॉलिटिक्स के बारे में रुचि रखते हैं, इसको देख लीजिए। हमारा पार्टी बीजेपी यहाँ उड़ीसा में सरकार में आया, बहुत सारे कम लोगों को पता था कि हम लोग को सरकार में आएगा, ठीक है ना। मैं बोलता था लेकिन हम सरकार आएगा हमारा और हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो मैं 10 साल से पहले बोल रहा था, लेकिन इस बार बोला था, लेकिन हम लोग जीत गए। बहुत सारे लोग इसको समझ लीजिए क्या इसका मतलब है। तो मेरे को लोग वोट दिया, क्यों वोट दिया कि सीपीएम के साथ गठबंधन हुआ बीजू बाबू का, जनता पार्टी का बहुत जोरदार उस समय में हवा था, किसी को भी खड़ा कर देने से वो जीत जाता, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। तो जनता पार्टी, राज परिवार, बाकी लोग जितना थे वो रिजाइन कर दिया। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट ठीक ठाक हुआ नहीं, तो कांग्रेस पार्टी वाला भी खाली बहुत नाराज हो गए। जो प्रतिष्ठाता वहाँ का सीनियर एडवोकेट था वो भी नाराज हो गया। तो फिर मेरे को बुलाए वो लोग, मैं उस समय में मेरा एज था 28 साल, कितना 28 ईयर, मैं एमएलए नॉमिनेशन कर चुका था हारने के लिए। वो बुला के बैठा के मेरे को बोला तुमको हम जिता देंगे, कितना पैसा तुम खर्चा करोगे? मैं बोला 20-25 हज़ार खर्चा करता हूँ, इतना में क्या होता है? तो बोला क्या करेंगे हम, कितना पैसा में पहला बार एमएलए बने पता है आपको? 1,20,000 में, ओनली 1,20,000। उसमें से 30,000 रुपया मैंने दिया, बाकी 2-2,500 रुपया करके कलेक्शन करके पार्टी के ओर से जो आया उतने में मैंने एमएलए बन गया। मैं 100 रुपया करके बूथ एजेंट फीस दे रहा था, उसको भी कुछ लोग नहीं लिया। बोला आप तो जीतेंगे, आपको तो हम जिताएंगे, आप जीतने के बाद लेकिन हम लोग का काम कीजिए, पैसा नहीं लेंगे, कोई हम लोग को परेशानी नहीं करेंगे, बस इतना ही हमको आवश्यक है, बाकी आपसे और बाकी कोई आवश्यक नहीं है। तो इसके बाद वो लोग दिया और मैंने जीत गया। 27 फरवरी 1990 डेट भी मेरे को याद है, 27 फरवरी 1990 में हम 2 एमएलए जीते उड़ीसा का, विक्रम केसरी देव कलाहांडी महाराज के छोटा लड़का और मैं। तो मैं तो जीतने के बाद थक गया था, उस समय में ज़्यादा समय इलेक्शन होता था, 21-22 दिन। मैंने आया और अपना खटिया में घर में सोया, मैंने नींद खोला सुबह, तो खोलने के बाद मैंने ऐसे करके बोला कि क्या हो रहा है, मैं एमएलए बन गया। अपने आप को मैंने देखा तो मैं एमएलए बन गया। फिर आया यहाँ, वो रूल्स प्रोसीड्योर कॉन्स्टिट्यूशन किताब करके एक बैग दिया, मैंने उसको पढ़ने के लिए शुरू किया। तो विक्रम केसरी देव, टाइम है ना, तो विक्रम केसरी देव अपना जो सीनियर थे, 2 हम लोग जीते थे, वो पहले बार विधायक थे भी, राज परिवार के भी हैं। तो बोला कि यू स्टैंड अप एंड स्पीकिंग, दैट इज असेंबली, काहे पढ़ रहे हो, स्टैंड अप एंड स्पीक, ठीक है ना।
स्टैंड अप एंड स्पीक, वो असेंबली बोला। तो मैं बोला क्या बात करेंगे, रख दिया मैंने। चलो आज से, उसके बाद मैं पढ़ा नहीं पूरा संविधान को, पूरा पढ़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा जो सेक्शन मेरे को आवश्यक होता है उसको पढ़ा है। कुछ कुछ रूल्स एंड प्रोसीडियर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, लेकिन बाकी पढ़ता नहीं। और स्टैंड अप एंड स्पीक, तो पहला तो शपथ विधि होता है। शपथ विधि के बाद फर्स्ट असेंबली जो बैठेगा उसमें स्पीकर निर्वाचन होता है, स्पीकर का इलेक्शन होता है। युधिष्ठिर दास को स्पीकर के रूप में निर्वाचित करके बैठा दिया गया। बैठने के बाद चीफ मिनिस्टर बोले, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन तो नहीं थे, कांग्रेस वाले 10 थे, उनमें से एक आदमी बोला, फिर सीपीआई सीपीएम ऐसा करके बोला। तो मैंने बैठे बैठे सोच रहा था भाई स्टैंड अप एंड स्पीक बोला है नेता ने, देखते हैं। मैं खड़ा हो गया, अब मैं बोलना चालू कर दिया। अब मैंने बोल दिया, आप नाम आपका युधिष्ठिर है, धर्मराज है, हम लोग जैसा नया नया आदमी को थोड़ा गलती सलती हो या जो भी है, हम खड़ा हो जाएंगे और थोड़ा बोलने के लिए कोशिश करेंगे, तो आप थोड़ा मौका देंगे, बस आप बढ़िया करेंगे, आपको बधाई हो, ऐसा वैसा जो करना है थोड़ा 2-4 लाइन में से बोल के बैठ गया। दूसरा दिन पेपर में, टीवी में, रेडियो में सब मेरा नाम आ गया। तो मैंने बोला कि स्टैंड अप एंड स्पीक ये असेंबली है और क्या करना है, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद लेकिन पढ़ना पड़ता है। मैं रात 4 बजे पेपर को पढ़ के कटिंग लगा के एडजर्नमेंट मोशन, कॉल अटेंशन वगैरह वगैरह देता रहा और हल्ला करता रहा। मीटिंग होता था तो कलेक्टर लोग के पास मैं तो स्कूटर में घूमता था और डायरी लेता था। पहले से भी आदत है ना नौकरी के टाइम में, तो डायरी में नोट कर करके आता था। जो ऑफिसर को पूछा जाता था ऐसा ऐसा ये काम क्या हुआ है, वो ठाकने के लिए कोशिश करते हैं। ऑफिसर लोग रिपोर्ट देने में, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन करने में बड़ा माहिर होते हैं सर, तो मैं उनको पकड़ लेता था। आज तो आप लोग के पास मोबाइल है, उस समय में मोबाइल होता तो और कुछ होता। इतना मैंने ये करके क्या मुश्किल हो गया। यहाँ भी मंत्री लोग जो रिप्लाई देते हैं, वो बहुत सारे मंत्री क्या है थोड़ा पढ़ के जाते थे और बाकी प्रिपरेशन नहीं करता। आप बोल देंगे ये सब मंत्री हमारा तो बहुमत है क्या है, लेकिन मैं थोड़ा ठीक से पढ़ के जाता था। एक दिन एक मंत्री को मैंने बोला कि तुम नोट शीट में क्या लिखा है उसका कॉपी मेरा पास है, तुम क्या बोल रहे हो, उसको चैलेंज लगाया। तो फिर मुश्किल हो गया। मेरे उसके बाद बाहर में निकले, फिर ठीक है ये हो गया। बाहर में फिर मैं बुलाया, एक पियन को बोल के थोड़ा एमएलए को बोला भाई तुम मेरे को इतना परेशान क्यों किया, कहाँ से मिला तुमको? तो मैंने बोला तुमको क्यों बताऊँगा, ये नोट शीट लिखा है कि नहीं, देखो सिग्नेचर तुम्हारा है कि नहीं। तो बोला हाँ। तो बोला मैं अपोजिशन में हूँ, जिसको टेंडर नहीं मिलता है उसका अपोजिट पार्टी उसको सब पता है, वो लेके देते हैं पेपर। मैं जैसा हालात क्या, मेरे को ज़्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ता था, सब इन्फॉर्मेशन मेरे को आ जाते थे। रात 4 बजे उठा के मेरे को ये करते थे, मैं भी 4 बजे उठ जाता था, उसी में से चलता था। डेली पेपर में, रेडियो में, और ऐसे बाकी ये करता था। तो फिर हो गया। मैं कुछ गलती करता था, कुछ पब्लिक ने, मैंने जाने से गांव में नहीं बैठ के हम किसी के घर में बैठते थे, वहाँ जो मिलना है मिल जाते थे। तो सेकंड मीटिंग, जब सेकंड टाइम मैंने एमएलए लड़ने के लिए गया, तो गांव वाला आदमी बोला कि आप हमारा इस मंडप में नहीं बैठ सकते। मैं बोला क्यों, आप हमारा गाँव आए नहीं हो? तो मैंने बोला भाई 4 बार 5 बार या 6 बार आया। बोला आया, लेकिन इस मंडप में बैठा क्या? बोला नहीं। कहाँ बैठा? आप तो उसका घर में बैठते हैं, उसका साथ हम लोग पटते नहीं, हम वहाँ क्यों जाएंगे? हम तो वोट दिया था, हम कांग्रेस का आदमी हैं, लेकिन आप इस बार नहीं देंगे आपको। तो मैंने बोला भाई मेरा गलती हो गया, चलो आगे आने से पब्लिक में पहला बैठूंगा, मंडप में बातचीत करूंगा, पब्लिक का सुनूंगा, और जो मेरा खास वर्कर है तो उसका घर में जाके चाय पी के आऊँगा। तो ऐसे जो तैरना नहीं जानता है उसको फेंक दो पानी में, जान बचाने के लिए तो तैरना पड़ेगा ना। ऐसे पॉलिटिक्स में ऐसा है। तो मैंने फिर गलती हुई, माफ़ी मंगा के बोला कुछ गलती हो गया, आगे चल के सुधार लूँगा। ऐसे करके मैंने सेकेंड टाइम जीत गया। फिर उसके बाद तो लोग वोट देते गए, मैं भी सीख गया टेक्निक। मेरा एक ही चूल्हा है,
5 जगह में मैं रहता हूँ। मेरा सेंटर है दिल्ली में, एक ही चूल्हा है, वहाँ ड्राइवर भी उसी चूल्हा में से खाता है, बाकी लोग भी खाते हैं। मैं नीचे सोऊंगा लेकिन पब्लिक को मैं ऊपर में सोऊंगा। तो और दूसरा काम, बहुत बड़ा बड़ा काम भी कर लेता हूँ कभी कभी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। रेलवे टिकट रिजर्वेशन प्रायोरिटी MP का सिग्नेचर में हो जाता है, रेलवे ऑफिसर बैठे हुए हैं तो उसको कर देता हूँ। आप मेडिकल में आते हैं तो उसकी कर देता हूँ। थाना पुलिस वाला, डॉक्टर खाना और थाना, ये आपका रेगुलर है। तो थाना में कुछ भी होगा, आप मर्डर किया है आदमी, फिर भी तो बोलेगा कि सर आप थोड़ा बोल दीजिए। मैं जानता हूँ वो तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे सीख गया। मैं बोलता हूँ देखो मैंने ऐसा ऐसा SP साहब फ़ोन किया है, मैंने थाना बाबू आप हो सके तो उसको थोड़ा मदद कर दी, बस इतना ही करता हूँ। लेकिन वो आदमी का सामने करता हूँ तो वो उतना खुश हो जाता है। उधर काम हो चाहे नहीं हो, आप मेरे लिए फ़ोन किया, आप जिसका काम हो जाता है वो आता नहीं जाता है। आप ये सुन लीजिए इसको, जितना आदमी को मैंने नौकरी दिया वो सब अगर आते और वो 1-1 हज़ार रुपया देते भी तो मेरा इलेक्शन पार हो जाता। नौकरी पाने के बाद वो आते नहीं हैं। जिनका नौकरी नहीं मिलता है या जिसका काम नहीं होता है वो आते रहता है। वो भूलता नहीं। ये बात को भी देखना पड़ेगा आपको, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। कुछ कुछ काम नहीं करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। आप ठग रहे हैं बोल के लोग जिस दिन जान जाएंगे फिर उस दिन की आपका, उनको पता होना चाहिए कि ये आदमी जीतने के बाद भी इनमें अहंकार आया नहीं है, ये बदमाश नहीं है, ठगता नहीं है, ये झूठ नहीं बोलता है। मैं पहले कास्ट सर्टिफिकेट में कांग्रेस वाले 10 रुपया करके लेते थे, उस समय कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग दे देने से स्कूल एडमिशन के लिए चलता था, तो मैंने भी लिया। कुछ दिन के बाद लोग आए, भाई तुम और कांग्रेस में क्या अंतर है, इसमें से कितना पैसा है कि जो आपको प्रिंटिंग करने में लगेगा, इसको तुम लगा रहे हो, तुम्हारा तुम तो 10 रुपया लेने के लिए बोला है तो 20-25 करके तुम्हारा वर्कर भी लेना चालू किया। तो मैं बोला बंद, उस दिन से सब बंद। आज कोई ट्रांसफ़र के लिए नहीं, पोस्टिंग के लिए नहीं, बाकी कोई के लिए नहीं, बदली उदली इसके लिए कोई मैं पैसा नहीं लेता हूँ। पैसा तो मिल जाता है लेकिन फिर भी आप जानते, अब बिना पैसा में कौन राजनीति करता है। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। इतना मान लीजिए मैं 6 बार MP लड़ा है, कितना पैसा खर्चा हुआ आज तक मैं नहीं बता सकता। साइन कर देता हूँ लेकिन वो जो विधि के हिसाब से आपको कमिश्नर साहब बैठे साइन कर देता हूँ। ये बनाते हैं ना आजकल तो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर और खाता ये हो गया, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन साइन करके देना पड़ेगा, हिसाब आपको देता हूँ। लेकिन कितना पैसा खर्चा होता है मैं नहीं जानता हूँ। और जो वर्कर हैं बाकी सब वो लोग काम करते रहते हैं, वो खर्चा वर्चा वो लोग भी करते हैं। बहुत सारे समय में लोग अपने आप खर्च करते हैं। मैं बोला कि ये ऑफिसर लोग मेरे लिए इतना वोट में क्यों काम करते हैं। बोलते हैं कि सर आप किसी को परेशान नहीं करते हैं, आप जीतने से क्या है ना, मंत्री उंत्री बन जाएंगे, पैसा वैसा आ जाएगा तो हम तो उस पैसा में से काम करेंगे, हमको तो उसमें से मज़ा आएगा, उसमें और क्या करना है, आपको जैसे जिताना है तो इसलिए जिता देते हैं। 6 बार MP मेरे को जीता। इस बार मैंने गुस्सा में 8 बार MP लड़, मैं बोला और नहीं लड़ूंगा, छोड़ दूंगा, कितना ये करोगा आप। 10 बार मैंने लड़ा, 8 बार जीता, 2 बार MLA, 6 बार MP, 3 बार भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष, और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का 30 साल हुआ। मेरे को एक आदमी बोला कहाँ देश का प्रगति नहीं हुआ। मैं बोला कैसे नहीं हुआ, आओ आर्गूमेंट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ आर्गूमेंट। मैंने बोला तुम कैसे पाठ पढ़ते थे पहले, तो चुपचाप हो गया। बोला अरे डिबरी में डिबरी, तो बोला डिबरी मैंने आप समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, दिया आप लोग तो आप लॉन्ठन में पढ़े होंगे। अरे साला हम तो लॉन्ठन भी नसीब नहीं हुआ था। कॉलेज में जाने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब मैंने पहली बार देखा। तो फिर आज क्या देख रहे हैं आप मोबाइल फोन, पहले हाला को स्टाइल में टेलीफोन वाले बोलते थे, आपका उनको बंधा हुआ होता था। दुर्गा पूजा चांदा नहीं देंगे तो आपका टेलीफोन उसमें एक बार कुछ गड़बड़ हो गया तो आपको नहीं होगा, विश्वकर्मा पूजा देना ही पड़ेगा। तो इसलिए आज क्या है,
आज तो लाइन लगा के टेलीफोन बेच रहे हैं। पहले अप्लाई करो। हम सर एमएलए हुआ, एमपी हुआ, तो मेरे को 2-4 पत्रकार और बाकी लोग बोले कि सर आपको एमएलए एमपी के नाते जो कोटा साइन मिलेगा, टेलीफोन का कनेक्शन, आप मेरे लिए रखे रहिए। मैं बोला क्यों? नहीं, टेलीफोन मिलता नहीं। तो एमपी सिग्नेचर करने से, एमएलए सिग्नेचर करने से आप देखो कहाँ से देश आ रहा है। एचएमटी घड़ी किसको मिलता था? आपका सीमेंट का बोरा मिलता था क्या? चीनी मिलता था क्या? ये सब कोटा में थे। आप डिबरी से लंदन, आज तो कोई ये भी नहीं है। आप तो कहीं भी है आपका सोलर सिस्टम, ये वो, टेलीफोन, मोबाइल। आप पहले कौन उड़ाजहाज में कौन उड़ता था? कौन उड़ता था? एयरपोर्ट जाते थे यार, टिकट का क्या कीमत था? मैंने कैबिनेट में बैठ रहा हूँ ना, 3 बार हुआ ये। तो आपका प्रमोद महाजन जब ये अपने ओपन अप करेंगे एयरलाइंस को, बाप रे आर्गूमेंट 1 घंटा से ऊपर। अटल जी लेकिन धीरजवान व्यक्ति, वो तो महापुरुष थे, वो धीरे धीरे सब सुनने के बाद ठीक है, इसको तो फर्नांडिस जी करना पड़ेगा हमको, कर दिया। इंश्योरेंस का जब प्राइवेटाइजेशन होगा, वो फिर मैंने कैबिनेट में 1 घंटा से ऊपर चला। अटल जी धीरे से बोलना, करना पड़ेगा, कैप फेप जो बोल रहा है उसको लगाएंगे, लेकिन हम करेंगे। देखिए आज आपका ऐसे बहुत सारे चीज़ है। तो मैंने बोला कि तुम साइकिल तुम्हारा गांव में देखे थे? हमारा गांव में एक मेरा चाचा साइकिल खरीदा तो 4-5 गांव के लोग देखने आए थे। आज आप आज का मर्सिडीज खरीद के आने के बाद भी कुछ लोग देखने आएंगे क्या? आएंगे क्या? मैट्रिक पास किया मैंने उस इलाका का, तो कम से कम 2-3 गांव का आदमी मेरे को देखने आए थे। आप लोग को तो ज़्यादा आए होंगे। तो देश आपको इस लाइन से भी देखना पड़ेगा, इसको भी याद करना पड़ेगा। हम तो क्या पानी पीते थे भाई? हम तो जंगल में जाते थे, तो आप तो ये बोतल पानी, ये पानी देख रहा है। हम तो गामछा को ऐसे फेंक देते थे और उसमें से ऐसा ठोकते थे। पानी जो ऊपर में आता था उसको पीते थे, नहीं तो कीड़ा मकोड़ा इतना ये हो जाएगा कि पानी भी नहीं पे। हम ऐसे पानी पिया है। हम चावल नहीं मिलता था हम लोग को, कोदो, कुटकी, गुंडलू, माड़ुआ, इसमें से आधा चलाना पड़ता था। महुआ सीजा, आपका साग मंजी सीजा, इसमें से खा के बहुत सारे लोग, ये तो मैं खाया हूँ, आप लोग में से भी कुछ लोग खाया, लेकिन मेरा बाप दादा था तो क्या होगा। हमारा गांव में ट्रक आता था तो हम लोग छोटे छोटे थे, दौड़ते थे उसका पीछे पीछे, भाग जाने के बाद उस टायर को ये सूंघते थे, क्या गंदा आ रहा है। ये सिचुएशन था गांव का। तो उसमें से हम लोग आए हैं, लेकिन इसको भूलना नहीं चाहिए। मैं आप लोग को ये एग्जाम्पल सब दे रहा हूँ, जिसको नौकरी आप लोग को मिलेंगे, आपका वो समय को भी याद रखना चाहिए। भारत सरकार में आप माने आ रहा है पोजीशन में, आपका हाथ से सरकार का बहुत सारे काम होगा, बहुत सारे सेवा आपको करेगा। आप इस बात को थोड़ा थोड़ा याद रखते रहिए, ताकि आपको आपका काम करने में भी मज़ा आएगा। देश भी सेवा कर रहा हूँ, देश के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ, ये सब बात के बारे में आपको जानकारी होगा। ऐसे तो भाषण देने से मैं बहुत लंबा भी भाषण देता। अरे पहले हमारा भाषण देने वाला कौन था भाई? आडवाणी जाएंगे 6 घंटा का लेट में, डॉक्टर जोशी आएंगे, वो हम लोग का एक यात्रा हुआ जयपुर शहर में। मैंने 3 बार भाषण दिया। एक बार भाषण दिया 1 घंटा, फिर बोले कि नहीं भाषण दो। भाषण देने वाला कोई नहीं, शांतिदास, मैं, 2-4 आदमी थे। बोले और 1 बार भाषण दो, और 1 बार भाषण दिया। क्या बोलेंगे आप? मैंने 370 के ऊपर में वो भाषण देता था। 370 के बारे में एक दिन भाषण दिया एक गांव में। फिर मैं चला गया उसी मंडप में, हमारा कांग्रेस का जो एमएलए कॉन्टेस्ट गजाधर माझी, हमारा कुछ लोग बैठे, वो आया, बोला सर जुएल ओराम अभी यहाँ 45 मिनट 370 के ऊपर में भाषण देके गया, आप थोड़ा बताइए। ओह
बेकार बात करते हैं, बीजेपी वाला का कुछ काम नहीं होता है। वो हिमालय पर्वत के ऊपर में कुछ जगह में घास नहीं उगता है ना, बर्फ है। बोला हाँ वही 317 है, उसी के लिए लोग भाषण देते हैं। लोग ताली मार दिया तो हमारा आदमी 2 बैठे हुए थे, बोला साला ज्वेलराम इतना बात करके गया, कहाँ मैंने मेहरचांद महाजन, कहाँ आपका हरि सिंह और कहाँ आपका दुनिया बात करके गया। लेकिन ये तो बोले कि हिमालय के ऊपर में कुछ ये नहीं उगता है, उसमें उसके बारे में ये 370 लगा हुआ है, उसको हटा देंगे बोल के बोल रहे हैं। कौन सा बात बोल रहे हैं? देखिए बोला गांव का रोड के बारे में बोलिए, आप बिजली के बारे में बोलिए, नल कुआं देंगे वाले प्रमोद महाजन हमको एक दिन भाषण में बोला तुम काम करने से वोट मिलता है क्या? मैं बोला कि नहीं सर करना तो पड़ेगा। नहीं, पोस्ट बॉक्स लगेगा एक चुनाव पार, पोस्ट बॉक्स का डिजाइन क्या होगा दूसरा चुनाव पार, पोस्ट बॉक्स का कलर क्या होगा क्यों सिंह साहब ये तीसरा चुनाव पार, चौथा चुनाव में पोस्ट बॉक्स का लगेगा। उड़िया में न कही जानिले कथा सुंदर, बांधी जानिले मथा सुंदर। आप अगर बात को सत्तू सत्तू लत्तू पातू और खाते, अब धान क्या है, कूटो रांधो खाओ चलो, ऐसा है क्या? तो ऐसे ही बात बताने के लिए, बाकी देश के बारे में बाकी सब करने के लिए ऐसा चलता रहता है सर। आप हमारा तो काम कुछ नहीं है। अब भाषण देने से सबसे आसान काम और कुछ है क्या? ये स्टेज कैसे बनाया, ये कुर्सी लगने में कितना परिश्रम हुआ, आप लोग आए हैं इसको बुलाने में कितना क्या हुआ, इसमें मेरे को पता है? कुछ नहीं पता है। मेरे को माइक दिया, आपने भाषण देने के लिए बोला, आप भी ताली मार रहे हो, फिर भी भाषण दूंगा। एक आदमी ने बोला भाई मैं भाषण दे रहा हूँ, सब तो उठ के चले गए, तुम कहे बैठे हुए हो, तुम मेरा भाषण सुन रहे तो मतलब मैं लास्ट तक भाषण दूंगा। वो आदमी ने खड़ा होकर बोला सर ऐसा नहीं है, मैं आपका भाषण नहीं सुन रहा हूँ, आपका भाषण कंप्लीट करोगे तो माइक फाइक करो जो स्टेज, उसको उठा के लेने के लिए बैठा हूँ, लेकिन आपको देख रहा हूँ भाषण दे रहा है। ये भी होता है सर, क्या करोगे? तो आप देखिए जो भी है, लेकिन देश आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पॉलिसी और प्रोग्राम, ये बात का भी सबूत है। वो चाय बेचे थे, वो गरीब क्या है, गरीबी क्या है उसको देखे थे, उनका अनुभव है। आप पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के नाते, उनका मुख्यमंत्री के नाते भी गुजरात में हर साल मैं जाता था। आप जो दक्षिण गुजरात है, सूरत, डांग, बांसवा, भापी, ये सब इलाका में हमारा ट्राइबल इलाका है, मैं उसमें जाता था। मेरे को मंत्री बनने के बाद आपका मैंने 3-4 महीना तक मेरे को ऑफिस नहीं मिला, शास्त्री भवन नहीं जा पाया। मेरे को हमारे कुशाभा ठाकरे जी बोला अरे यार तू तो जनजातीय ट्राइबल है, तुम तो पेड़ का नीचे भी बैठ के भी काम करना सीखते हो, क्या चीज़ है? जाओ तो कैबिनेट मंत्री बने हो, मिल जाएगा सब, चिंता मत करो। धीरे धीरे फिर मैंने सब अपना अपना किया। ये सब भी मेरा एक्सपीरियंस में से आ रहा है, ठीक है ना? एक्सपीरियंस डज नॉट कम फ्रॉम द गुड वर्क, आपका बेड वर्क में से और फेलियर में से ही एक्सपीरियंस आता है। तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, बॉयलर इंस्पेक्टर, आपका एमएलए को, एमपी को, ये सबको मैंने झेला था, स्कूल देखा था। इसलिए मैंने अभी बोला अरे चलो ठीक है, कोई ऑफिसर आएगा, कोई आदमी आएगा, कोई पॉलिटिक्स में है मतलब आपको सब ऑफिसर अच्छा आदमी है ऐसा नहीं होगा। वो पिया खिया हुआ आदमी भी आएगा, मैं वोट दी थ्रू बोलने से आपको नमस्कार करना ही पड़ेगा। मैंने सोच रहा था कि बड़ा बड़ा मैनेजर फैनेजर सीनियर इंजीनियर इनको कितना नमस्कार करो, अरे यहाँ आने के बाद तो पूरा फंस गया, ये तो हर किसी को भी नमस्कार करना पड़ेगा पॉलिटिक्स में। तो ये है, आप चलिए आगे चलिए, और कभी बुलाइए दूसरा सब्जेक्ट में है बता के बोलिए तो उसमें भाषण सुन दूंगा। आज इतनी भाषण दे के आपने मेरे को झेला, आपने सुना पूरा, इतना ताली बजाया, इसलिए धन्यवाद देके मेरा बात को ये समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय।
भारत सरकार 17तम रोजगार मेला 51,000 अधिकार लोक आज चाकरी दिगला आटा गोटे अभिनव उपाय आ सिस्टम जो कि प्रधानमंत्री स्वच्छता आनापी योग्य व्यक्ति को ठीक ठीक भाव में चाकरी मिले से व्यवस्था कर धन्यवाद दूची आज जो लोक मैंने चाकरी पाइले भी मुझे कंग्राचुलेसन दूची मुझे से कहीपर ऑल इंडिया सर्विसेस तेज ओडिशा कथा कहीं कहवा आम पूरा इंडिया लोक दूचु बस समझते निश्चित भाव में भल काम करेंगे यंग पिला मुझे देखुची आ मैक्सीम आप टेक्निकल ग्रुप रेलवे सब जूनियर इंजीनियर विभिन्न टेक्निकल ग्रुप आसुच्च मो ना अदिति रेना मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एज ए जियोलॉजिस्ट अपॉइंटेड हेली आज और आज श्रीयुक्त जियोलोराम आसते जो अपॉइंटमेंट लेटर देले धन्यवाद जनाऊँ आम श्रीयुक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी आमर थैंक यू जनाऊँ आज एत बड़ा इवेंट आम समस्त मिलला अपॉइंटमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट में भी इंटराक्ट करें जोटा जनरली हो पारे ना तो सेवा में भी आई एम थैंकफुल टू देम एंड थैंकफुल टू डिपार्टमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग आम तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जॉइन करते तो जनरली आम कम मिशन जो अच्छी 5टा मिशन अच्छी एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोरेशन फील्ड जोटा ओडिशा तो आमर बहुत राज्य तो से मुझे मोर एजुकेशन टोल देवी कि आम आउ भल एक्सप्लोरेशन फील्ड आउ डेवलपमेंट आने ता संगे भी एनवायरमेंट को भी क्षति न पहुँचे तो भी आम चेष्टा कर मैंने अंजन मिश्रा मत रेलवे ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट आज जूनियर इंजीनियर जॉब मिली से माननीय केंद्रीय मंत्री जियोलोराम को बहुत धन्यवाद अर्पण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रोजगार मेला भी आयोजन कर बहुत मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी एक्नॉलेजमेंट पाई से जिनस फ्यूचर जाकि बहुत गुड़े कैंडिडेट जो मैंने आस्पिरेंट अच्छे से भी स्वीकार करेंगे प्रेरित करेंगे जेहेतु सरकार आमको देती जॉब आम दायित्व ये सही अनेस्टी सही पर्सेंटेज आम कम कर आशा करके आगे भी सेमती कम आज्ञा से जिन तो जहाँ स्वच्छता जो भी आप जाते जो जॉब करेंगे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी तो ताकि तो जहाँ भी आगे रखे जो भी जॉब करेंगे अनेस्टली जॉब करेंगे से